السلام علیکم ناظرین، 4TV خبر نامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں محمد حسام الدین متین۔ سب سے پہلے پیش ہیں ہیڈ لائنز۔ تعلیمی سال کا آغاز اگست کے وسط سے کیا جائے۔ لو لگنے اور آلودگی سے ہونے والی اموات کو آفات سماوی کے زمرے میں شامل کیا جائے۔ تلنگانہ کے فنڈز جاری کرنے بیرسٹر اویسی کا مطالبہ۔ لاگا چرلا کے کسان کو بیڑیاں ڈال کر ہاسپٹل لے جائے جانے کا وزیر اعلیٰ نے لیا نوٹ۔ تحقیقات اور رپورٹ دینے کی ہدایت۔ تلنگانہ کی حکومت بے رحم ہے، انسانی حقوق کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں۔ کسان کو بیڑیاں پہنائے جانے پر KTR کا رد عمل۔ سرکاری دواخانوں میں فائر سیفٹی، ڈائگنوسٹک اور ادویات کا جائزہ لینے کے لیے 10 ٹاسک فورس ٹیموں کی تشکیل۔ وزیر صحت کا جائزہ اجلاس۔ عہدیداروں کی غلطیوں پر عوام کا پیسہ معاوضے میں خرچ کرنا درست نہیں۔ غیر مجاز تعمیرات کی اجازت دینے والوں کے لیے مجرمانہ مقدمے درج کیے جائیں۔ ہائی کورٹ کی سرزنش۔ نارسنگی حدود میں ایک ساتھ 4 مکانات میں سرقے کی واردات۔ طلائی اور چاندی کے زیورات لے کر سارق فرار۔ اور آندھرا پردیش کے انامیا ضلع میں فلمی انداز میں قتل۔ بیٹی کے ساتھ مبینہ زیادتی پر کویت سے آ کر باپ نے کیا قتل۔ سوشل میڈیا پر جاری کیا ویڈیو۔ اگر آپ کاروبار کرنا چاہتے ہیں تو QMAX بلڈرز اینڈ ڈیولپر سے رابطہ کریں۔ QMAX دے رہا ہے ریڈی بینکٹ ہال، 3 فلورز پر مشتمل۔ 5th، 6th، 7th فلور پر 6,000 کا 18,000 اسکوائر فٹ کا ریڈی میڈ بینکٹ ہال۔ آج ہی رجسٹری کرائیں اور آج سے ہی فنکشنز کی بکنگ کریں، وہ بھی بہترین پرائم لوکیشن ٹولی چوکی پر۔ منگنی، شادی، ولیمہ، برتھ ڈے پارٹیز، اینیورسری جیسی دیگر تقریبات کے لیے فلی ایئر کنڈیشن QMAX کوہینور بینکٹ ہال، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ QMAX بلڈرز اینڈ ڈیولپرز آپ کے لیے لائے ہیں 3 and 4 BHK لگژری ریزیڈینشیل فلیٹس پرائم لوکیشن پر ماڈرن ایمینٹیز کے ساتھ۔ پلیٹینا ریزیڈینشیل کمرشل، ڈالر ہلز، الکاپور روڈ، موسا انکلیو، ایسے کالونی، ٹولی چوکی۔ MSN ڈائمنڈ ہلز کالونی، ٹولی چوکی۔ ایزل ریزیڈینسی، ایسے کالونی، ٹولی چوکی۔ سرین ہائٹس، گولڈن سینڈ کالونی، ٹولی چوکی۔ دارالامن، ہیپی ہومز کالونی، الکاپور، دارالخیر، سوریہ نگر کالونی، ٹولی چوکی۔ ڈیلائٹ سوٹ beside سنا انکلیو، ٹولی چوکی۔ اکبر انکلیو، گولڈن سینڈ کالونی، ٹولی چوکی۔ انکمپرومائزڈ کوالٹی کنسٹرکشنز، آن ٹائم ڈیلیوری ہماری پہچان ہے۔ 35% ڈاؤن پیمنٹ، بقایا 12 مہینے کے آسان اقساط پہ۔ QMAX بلڈرز اینڈ ڈیولپرز، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ آپ کا خواب اب ہے حقیقت۔ عزیز ون ماون، آپ کا نیا گھر، آپ کا نیا مستقبل۔ 3 BHK کے لگژریس ریزیڈینشیل فلیٹس وتھ سجسٹڈ انٹیریئر، وہ بھی پرائم لوکیشن ملے پلی پر۔ سکولز، ہاسپٹلز، شاپنگ مالز کے قریب یہ گھر بنا ہے خاص آپ کے لیے۔ اعلیٰ معیار کی سہولتیں، فلی سیکیور گیٹڈ کمیونٹی جہاں جم سے لے کر مدرسہ اور نماز کے لیے مخصوص جگہ۔ گھر پر ہونے والی تقریبات کے لیے اسپیشل بینکٹ ہال، 4 لفٹوں کی سہولت، 24/7 سیکیورٹی، اسپیشیس کار پارکنگ اور 24/7 پاور بیک اپ کی بھی سہولت۔ 40% ڈاؤن پیمنٹ، ریمیننگ 18 months ایزی انسٹالمنٹ۔ عزیز ماون ون، جہاں خوابوں کی تعبیر ہوتی ہے۔ آفس ایڈریس عزیز کنسٹرکشن beside رتندیپ سپر مارکیٹ، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ اس مہنگائی کے دور میں سونا خریدنا ہوا آسان۔ جوہری گولڈ ڈائمنڈز اینڈ پلیٹینم ٹولی چوکی لایا ہے گولڈ بچت اسکیم۔ شادی بیاہ اور دیگر تقریبات کے لیے اب سونا خریدیں 11 مہینے کی آسان اقساط پر اور 12ویں مہینے میں اپنا سونا گھر لے جائیں ایوریج گولڈ ریٹ پر، بنا کوئی ایکسٹرا چارج اور 0% انٹرسٹ کے ساتھ۔ 916 ہال مارک کی جیولری، نو ویسٹیج، نو میکنگ چارجز کے ساتھ اب ہوگی بچت پیسوں کی اور گھر آئے گا سونا، وہ بھی آسان اقساط پر۔ آپ کا بھروسہ، ہماری پہچان، جوہری، crafted just for you، گولڈ ڈائمنڈز اینڈ پلیٹینم، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ اور اب پیش خبریں تفصیل سے۔
सदर मजलिस और रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने मुल्क भर में अगस्त के वस्त से तालीमी साल के आगाज पर जोर दिया है। लोकसभा में डिजास्टर मैनेजमेंट बिल के मुबाहिस में हिस्सा लेते हुए बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि जुलाई और अगस्त में बरसात उरूज पर होती है। ऐसे में अगस्त से तालीमी साल के आगाज पर गौर किया जाए। बैरिस्टर ओवैसी ने सफाई, आलूदगी और गर्मी के दौरान लू लगने से होने वाली अमवात को आफात समावी के जुमरे में शामिल करने पर जोर दिया। सदर मजलिस ने डिजास्टर मैनेजमेंट बिल की मुखालिफत की। उन्होंने कहा कि इस बिल में सेक्शन 5 की तरमीम की गई है। बैरिस्टर ओवैसी ने बिल के नकाइस को भी पेश किया। उन्होंने बताया कि मुल्क में हर साल हजारों अफराद लू लगने से फौत होते हैं और इन अमवात को आफात समावी के जुमरे में शामिल किया जाना चाहिए। बैरिस्टर ओवैसी ने SDRF के फंड्स को माली साल के आगाज में जारी करने का मुतालबा किया। रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद ने तेलंगाना में बारिश और सैलाब से हुए नुकसानात का भी हवाला दिया और कहा कि साबिका हुकूमत की तरफ से फंड्स इस्तेमाल न करने पर मौजूदा हुकूमत मफलूज होकर रह गई है। उन्होंने कहा कि मौसमी तब्दीली हकीकत है और इसके लिए मौसर फंड्स बर वक्त जारी किए जाने चाहिए। बैरिस्टर ओवैसी ने अगस्त 2023 में तेलंगाना सैलाब से हुए नुकसानात का हवाला दिया और कहा कि तेलंगाना के वजीर आला ने जो नुमाइंदगी की है, ममलिकत वजीर बी संजय को इस सिलसिले में पैरवी करनी चाहिए। उन्होंने NDRF का बजट 10,000 करोड़ रुपए करने का भी मुतालबा किया। सर, मैं इस बिल की मुखालिफत में खड़ा हूँ। इस बिल में सेक्शन 5 को तरमीम करके ये बताया जा रहा है सरकार की तरफ से कि स्कोप, नेचर, कैटेगरी ऑफ द ऑफिसर्स, एम्प्लॉइज को वो लोग खुद तकर्रुर कर सकते। बट इफ यू सी सेक्शन 5(1) सर, ये दिस इज जस्ट अ कॉस्मेटिक अमेंडमेंट बिकॉज सेक्शन 5(1) says the national authority can exercise this power only with the prior approval of central government. Now this greatly undermines the purpose of the amendment. So basically there is no decentralization. Sir, this bill fails to set minimum standards and conditions so as to ensure that it is not filled by bureaucrats with limited knowledge of disaster relief and mitigation. Sir, thousands of people die in our country because of heat wave. This should be included, death of heat wave should be included in the definition, sir. The government of India, our foremost medical research institute like ICMR, sir, a study done by Pandey and Anamika found that 16 to 70 lakh deaths were attributable to air pollution in India in 2019. So this definition of disaster should include air pollution and heat waves, sir. Sir, I request the government to examine this. Our country should have a debate that why can't we start our academic year in mid-August? Because of climate change is reality now. Because of climate change, heat waves, floods, heavy rainfall, sir, are happening in month of July, August, and sir, this we can save human lives and economic loss, sir. And last point, sir, in my state in August, September, the Honorable Minister, Mr. Bandi Sanjay is sitting over here. In August and September 23, we had floods and huge rainfall. 10,000 crores has been the loss. Only 2,300 crore damages to roads, sir. Still now, government is not releasing the money. Districts like Mahbubabad, Suryapet, Khammam and Warangal have suffered huge losses. There has been human loss, cattle loss, property loss, especially of Dalit community. I am concluding. So I demand that the request being made by the Honorable Chief Minister Revanth Reddy on behalf of Telangana, Mr. Bandi Sanjay should pursue it and ensure Telangana done justice. Lastly, sir, vacancies NDRF, sir, there are 14,197 personnel in service against the sanctioned strength of 18,557. And why are you not able to stop mudslides, floods which are happening in Himachal and Kerala, floods are happening in Bihar? What are you doing? NDRF fund is 600 crores. Is 600 crores enough? Why don't you increase it to 10,000 crores when money is a no issue for you? Every time we say. So that is why, sir, I oppose this bill on this ground. Thank you, sir. प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आज मुल्क की तमाम अदालतों को 1991 के कानून के तहत मजहबी मकामात के सर्वे और किसी भी तरह की उबूरी या हतमी अहकामात न देने का हुक्म दिया है। इस मामले पर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने मीडिया से बात करते हुए अपना रद्द अमल जाहिर किया। जब ये प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट बनाया गया था, उसका मतलब ये था कि देश में इंस्टेबिलिटी ना हो, दंगे ना हो और देश में अमन रहे। अब हम जो देख रहे हैं, खासतौर से संभल में जो हुआ, जिसमें एक ही दिन में केस फाइल हो गया
और 1.5 घंटे के अंदर ऑर्डर भी मिल गया, सर्वे हो गया, फिर दूसरा सर्वे हुआ, उसके नतीजे में हम देखते हैं कि हिंसा हुई और 5 बेकसूर मुसलमानों की वहां पर पुलिस के जरिए हत्या कर दी गई फायरिंग में। तो सुप्रीम कोर्ट का आज का फैसला उस एक्ट को सामने रखकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब कोई सर्वे नहीं होगा, कोई केस कोर्ट हियर नहीं करेगी जब तक कि सुप्रीम कोर्ट उसकी हियरिंग को कंप्लीट नहीं करता, जो भी फैसला आएगा। तो ये बिल्कुल सही है। ये बार बार कोर्ट को जाना कि यहाँ पर मस्जिद नहीं थी, 500 साल 600 साल पहले ऐसा हुआ, बिल्कुल गलत है। पार्लियामेंट का एक्ट है और भारत सरकार को, मोदी सरकार तो रिप्लाई डाल ही नहीं रही अपना, उनको रिप्लाई डालना चाहिए। और ये अच्छा फैसला है, कम से कम इस पे दंगे नहीं होंगे, लोगों की जानें नहीं जाएंगी और गैर जरूरी जो 600 साल पहले 700 साल पहले, ये क्या मुल्क को आगे ले जाएंगे या फिर क्या करेंगे हम लोग। वजीर आला रेवंत रेड्डी ने लागरचर्ला के किसान हीरा नायक को हाथों में बेड़ियां डालकर हॉस्पिटल ले जाए जाने के वाक़े का सख्त नोट लिया है। वजीर आला ने ओहदेदारों से कहा कि आखिर किसान को इस तरह हॉस्पिटल ले जाने की क्या जरूरत थी। वजीर आला ने इस सिलसिले में तहकीकात और रिपोर्ट देने की हिदायत दी है। वजीर आला ने यह भी इंतबाह दिया कि कांग्रेस हुकूमत में इस तरह की हरकतों के लिए कोई जगह नहीं है। तेलंगाना बीआरएस पार्टी के कारगुजार सदर केटी रामाराव ने लगरचर्ला वाक़े के सिलसिले में गिरफ्तार किसान हीरा नायक को हाथों में बेड़ियां डालकर हॉस्पिटल ले जाए जाने की मजम्मत की है। मीडिया से बातचीत के दौरान केटीआर ने किसान की पुलिस वालों के साथ तस्वीर भी मीडिया के सामने रखी। उनका कहना था कि यह इंतहाई बदबख्ती की बात है कि किसान को दिल का दौरा पड़ा, लेकिन इसकी इत्तला तक खानदान वालों को नहीं दी गई और इसे हॉस्पिटल ले जाया गया। रेवंत रेड्डी हुकूमत के पास इंसानियत नाम की चीज ही बाकी नहीं रही है। रेवंत रेड्डी हुकूमत इंसानी हुकूक की धज्जियां उड़ा रही है। अदानी के लिए, अपने दामाद के लिए रेवंत रेड्डी किसानों की जमीन हड़पना चाहते हैं। जो किसान दिल का मरीज है उसे दहशतगर्दों की तरह बांधा गया और उसके हाथ में बेड़ियां डाली गई। జైలు అధికారులు అంటే ప్రభుత్వ కస్టడీలో వెంటనే ఆ కుటుంబ సభ్యులకు తెలియజెప్పాలన్నా వద్దా? కనీసం చెప్పలేదు. ఆయనకి ఏమన్నా అయితే బాధ్యత ఎవరిదని నేను అడుగుతా ఉన్నా. కుటుంబ సభ్యులకు చెప్పకుండా, అమానవీయంగా ఆసుపత్రికి తరలించకుండా, కేవలం పరీక్షల నిమిత్తం మాత్రమే పంపించి తిరిగి రప్పించి మళ్ళీ జైల్లో పెట్టినారు. ఇవాళ ఉదయం మళ్ళీ గుండెపోటు వచ్చింది హిరియా నాయక్. ఇప్పుడు ఈ రోజు ఉదయం 11 గంటలకు, నిన్న ఒకసారి అయింది, నిన్న ఎవరికి సమాచారం ఇయ్యలే. ఇవాళ పొద్దున గుండెపోటు వస్తే 11 గంటలకు మళ్ళా సంగారెడ్డి హాస్పిటల్కి తరలించిండ్రు. ఇంకా ఘోరం ఏంటంటే అసలు మీరు ఇది చూడండి దయచేసి ఒకసారి. ఇవాళ ఆ సోదరుణ్ణి ఆసుపత్రికి తీసుకొచ్చారు. ఇట్లా బేడీలు వేసి, ఎవడన్నా గుండెపోటు వచ్చినోడు పారిపోతారండి? గుండెపోటు వచ్చిన వాళ్ళు వెంటనే జైలు నుంచి దుంకి పారిపోతారా? ఇంత అన్యాయమా? జైలు నుంచి గుండెపోటు వచ్చిందని చెప్తే బేడీలు వేసి పట్టుకోమా, ఇంత అన్యాయంగా, ఇంత అమానవీయంగా, ఇంత సంస్కారహీనంగా, ఇంత చండాలమైన ప్రవర్తన ఈ ప్రభుత్వానికి ఉంది. స్ట్రెచర్ మీద తీసుకురావాల్సిన మనిషిని, అంబులెన్స్ లో తీసుకురావాల్సిన మనిషిని ఇవాళ ఒక పోలీస్ బండ్లో తీసుకురావడమే కాకుండా ఇంకా నికృష్టంగా ఈ రకమైన ప్రవర్తన ఏదైతే వీళ్ళు చేస్తా ఉన్నారో ఇది క్షమార్హం కానే కాదు. నేను గౌరవ హైకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తిని కోరుతా ఉన్నా, రాష్ట్ర గవర్నర్ గారిని కోరుతా ఉన్నా, కాంగ్రెస్ పార్టీ అధినాయకుడు, పార్లమెంట్లో ప్రతిపక్ష నాయకుడు రాహుల్ గాంధీని కోరుతా ఉన్నా, డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నా. रियासती वजीर सेहत दामोदरा नरसिम्हा ने सरकारी दवाखानों में डायग्नोस्टिक और फायर सेफ्टी आलात के अलावा अद्वियात का जायजा लिया। वजीर सेहत की तरफ से तलब किए गए इजलास में हेल्थ सेक्रेटरी क्रिस्टीना, डीएमई वानी के अलावा दीगर अहदेदार भी मौजूद थे। वजीर सेहत की हिदायत पर सरकारी दवाखानों में फायर सेफ्टी आलात और अद्वियात का जायजा लेने के लिए 10 टास्क फोर्स टीमें तश्कील दी गई हैं। टास्क फोर्स टीमों को दवाखानों का दौरा करने और रिपोर्ट देने की हिदायत दी गई है। ओहदेदारों ने बताया कि टास्क फोर्स टीमों की रिपोर्ट वजीर सेहत के हवाले की जाएगी।
तेलंगाना की हुकूमत की तरफ से ख़वातीन तंजीमों के लिए यूनिफॉर्म फराहम किए जा रहे हैं। रियासती वजीर सीताक्का ने बताया कि तेलंगाना की तारीख में पहली बार रियासत की ख़वातीन तंजीमों से वाबस्ता 63 लाख ख़वातीन को यूनिफॉर्म साड़ियाँ फराहम की जाएंगी। इस सिलसिले में CEO दिव्या देवरजन ने रियासती वजीर सीताक्का को साड़ियों के नमूने दिखाए। जल्द ही वजीर आला रेवंत रेड्डी की मौजूदगी में इसे कतियत दी जाएगी। रियासती वजीर सीताक्का ने तेलंगाना फूड कॉरपोरेशन की कारकर्दगी पर नाराजगी का इजहार किया है। रियासती वजीर ने अहदेदारों की तरफ से मनमानी फैसले लिए जाने पर बरहमी जाहिर की। टेंडर्स के बगैर कामों के अलॉटमेंट को लेकर भी रियासती वजीर ने बरहमी जाहिर की है। उन्होंने अहदेदारों को शफाफ और गैर जानिबदारी से काम करने की हिदायत दी है। तकर्रुरात के दौरान भी कवायद की खिलाफ वर्जी पर बरहमी जाहिर की गई है। साबिक वजीर और BRS लीडर हरीश राव ने इल्जाम लगाया है कि कांग्रेस हुकूमत अपनी नाअहली को छुपाने के लिए गुमराहकुन प्रोपेगेंडा कर रही है। हरीश राव ने कहा कि कांग्रेस अपने वादों को गारंटियों पर अमलावरी के नाकाम हो गई है। अवाम की तरफ से सवाल करने पर खौफजदा होकर हुकूमत गुमराहकुन और गलत प्रोपेगेंडा कर रही है। BRS हुकूमत ने रियासत के लिए जो असासे कायम किए थे और आमदनी में इजाफा किया था, कांग्रेस हुकूमत इस बारे में बोलने से कासिर है। तेलंगाना हाई कोर्ट ने गैर मजाज तामीरात और फिर उसकी इन्हदामी कार्रवाई पर अहदेदारों को सख्त सरजनिश की है। जस्टिस CV भास्कर रेड्डी की बेंच का यह मुशाहिदा था कि अहदेदारों की गलतियों से अवाम का पैसा मुआवजे पर खर्च किया जा रहा है। अदालत ने कहा कि जिन अहदेदारों ने गैर मजाज तामीरात की इजाज़त दी है, उनसे रकम वसूल की जानी चाहिए। अदालत ने कहा कि अहदेदारों की गलतियों पर अवामी पैसा ज़ाय करना दुरुस्त नहीं है। अदालत ने कहा कि इन अहदेदारों के खिलाफ मुजरिमाना मुकदमे दर्ज किए जाने चाहिए जो पहले गैर मजाज तामीरात की इजाज़त देते हैं और फिर इन्हदामी कार्रवाई की नोटिस भी देते हैं। अदालत शमशाबाद मंडल के रंगारेड्डी में FTL और बफर जोन के तहत एक जायदाद की इन्हदामी कार्रवाई से मुतालिक नोटिस के केस की समाअत कर रही थी। मुअज़्ज़िज़ जज ने कहा कि गैर कानूनी तामीरात की इजाज़त कैसे दी जा सकती है। अहदेदार बेकायदगियों का इर्तिकाब कर रहे हैं और गैर कानूनी तामीरात की हौसला अफजाई कर रहे हैं। अदालत ने हुक्काम को हिदायत दी कि FTL और बफर जोन के क़वायद को दुरुस्त किया जाए, कानून के मुताबिक नोटिस जारी करें और दरख्वास्त गुजारों को 15 दिन का वक्त दें। BRS के कारगुजार सदर KT रामाराव ने वन नेशन वन इलेक्शन को काबीना की तरफ से मंजूरी दिए जाने पर कहा कि 2017 में उस वक्त के वजीर आजम ने जब इस सिलसिले में तजवीज़ पेश की थी, BRS पार्टी ने इसकी तायद की थी। उनका यह भी कहना था कि हमें अब तक इस बिल के बारे में मीडिया से इत्तलात मिल रही हैं और जब हुकूमत की तरफ से ये बिल सामने आएगा तभी हम इस बारे में अपना रद्द-ए-अमल जाहिर कर पाएंगे। तांडूर में कस्तूरबा हॉस्टल में समियत ग़ज़ा से मुतासर होने वाले तुलबा की अयादत के लिए गए BRS के लीडर्स को तहवील में लेकर हैदराबाद मुंतकिल कर दिया गया है। साबिक़ वज़रा सबिता इंदिरा रेड्डी, सतावती राठौड़ को विकाराबाद के पास रोक दिया गया और इस मौके पर सबिता इंदिरा रेड्डी ने पुलिस की कार्रवाई की मज़म्मत की। पुलिस के साथ उनकी बहस व तकरार भी हुई। बताया जाता है कि साईपोर्ट ट्राइबल वेलफेयर गर्ल्स हॉस्टल में तालिबात समियत ग़ज़ा से मुतासर हुई थीं और इन्हें हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया था। BRS पार्टी की रुकन कौंसिल कविता ने कहा कि तक़सीम जदीद बिल के वादे के तहत खम्मम में स्टील फैक्ट्री कायम किया जाना था, लेकिन आज तक इस वादे पर अमल नहीं किया गया। मीडिया से बात करते हुए कविता ने कहा कि गुज़िश्ता रोज़ पार्लियामेंट में भी ये वाज़ेह किया गया कि खम्मम में स्टील फैक्ट्री का कोई मनसूबा नहीं है। कविता ने कहा कि फौरी स्टील फैक्ट्री के क़याम के वादे को पूरा किया जाना चाहिए। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर रुकन असम्बली बहादुरपुरा मोहम्मद मुबीन ने शमशीरगंज में वाक़े श्री चैतन्या स्कूल के इंतज़ामिया से मुलाकात करते हुए मंगल और चारशंबे को पेश आए वाक़े के सिलसिले में तशवीश का इज़हार किया। मीडिया से बात करते हुए मोहम्मद मुबीन ने बताया कि तलबा के दरमियान झगड़ा हुआ था और स्कूल की तरफ से इस मामले को रफा दफा भी कर दिया गया था, लेकिन बाद में बाज़ अशरार स्कूल में दाखिल होकर हंगामा आराई की और तलबा पर हमले की भी कोशिश की गई। पुलिस ने भी इतला मिलने पर बरवक्त स्कूल पहुंचकर हालात को काबू में किया। रुकन असम्बली ने कहा कि इस तरह की शरपसंदी की मजलिस मजम्मत करती है और स्कूल इंतजामिया पर भी जोर दिया कि इस तरह के वाक़यात का अयादा नहीं होना चाहिए। रुकन असम्बली ने मुतल्लिका पुलिस अहदेदारों, एडिशनल DCP साउथ जोन M.A. माजिद और ACP छतरीनाका से भी मुलाकात करते हुए शरपसंद अफराद की गिरफ्तारी का मुतालबा किया। मोहम्मद मुबीन ने स्कूल इंतजामिया को सदर मजलिस के पयाम से भी वाकिफ करवाया।
रुकन कौंसिल मिर्जार अहमद बेग ने सदर मजलिस और रुकन पार्लिमान बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की हिदायत पर रियासती हुकूमत की जानिब से मुनक्किदा कानून साज कौंसिल के तरीक़ेकार और उसके मालूमाती प्रोग्राम में शिरकत की। उन्होंने 2 रोज़ा प्रोग्राम जैसे ओरिएंटेशन प्रोग्राम ऑन लेजिस्लेटिव प्रैक्टिसेस से मौसूम किया गया है। इसमें शिरकत करके मुख्तलिफ उमूर पर जानकारी हासिल की। तेलुगु अदाकार मोहन बाबू के खिलाफ इक़दाम कत्ल का मुकदमा दर्ज किया गया है। तफसीलात के मुताबिक 2 रोज़ कबल मोहन बाबू की क़यामगाह पर मीडिया के नुमाइंदों पर मुबैना हमला हुआ था और इस सिलसिले में उनके खिलाफ पहाड़ी शरीफ पुलिस स्टेशन में सहाफ़ी सत्यनारायण की तरफ से शिकायत भी दर्ज कराई गई थी। वाज़ेह है कि मोहन बाबू के बेटे मंशू मनोज को उनके घर में दाखिल होने नहीं दिया गया था। इस दौरान मीडिया के नुमाइंदे भी वहां पहुंच गए थे और जब मोहन बाबू मुबैना तौर पर मीडिया के नुमाइंदों पर हमला किया था। कांग्रेस पार्टी के लीडर जितेंद्र रेड्डी को तेलंगाना ओलंपिक एसोसिएशन का सदर मुंतखब किया गया है। जितेंद्र रेड्डी ने अपने हरीफ चामुंडी को वाज़ेह वोटों की अक्सरियत से हरा दिया। जितेंद्र रेड्डी को 43 वोट हासिल हुए जबकि चामुंडी को 9 वोट ही हासिल हुए। गैर महसूब असासों के सिलसिले में गिरफ्तार आबपाशी महकमे के असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर निकेश कुमार से महकमे इंसदाद और रिश्वत के अहदेदारों की तरफ से पूछताछ हो रही है। इससे कबल अदालत की हिदायत पर एसीबी की टीम ने चंचलगुड़ा जेल पहुंचकर निकेश कुमार को अपनी तहवील में लिया। वाज़ेह है कि निकेश कुमार और उनके रिश्तेदारों के मकानात पर धावा करते हुए करोड़ों रुपए के गैर महसूब असासों का पता चलाया गया था। नारसंगी पुलिस स्टेशन हुदूद के हैदर शाह कोट शांतिनगर कॉलोनी में एक साथ 4 मकानात में सरखे की वारदात पेश आई है। तफसीलात के मुताबिक सारिकों ने कफल शिकनी के जरिए 4 मकानात से तलाई और चांदी के जेवरात के अलावा नकद रकम का सरका किया है। इतला मिलने पर पुलिस क्लोज टीम के हमराह मुकाम वाक़या पहुंच गई। बताया जाता है कि मुतासरा मकीन खानदान की तकारीब में शिरकत के लिए गए हुए थे। पुलिस ने केस दर्ज किया है। आसपास के सीसीटीवी का जायजा लिया जा रहा है। आंध्र प्रदेश के अनामिया जिले में फिल्मी अंदाज में एक शख्स का कत्ल हुआ है। कत्ल के बाद मुलजिम कुवैत फरार हो गया और फिर वहां से सोशल मीडिया पर वीडियो जारी करते हुए कत्ल का इतराफ किया। तफसीलात के मुताबिक अंजनिया प्रसाद, जो कुवैत में अपनी अहलिया के साथ मुलाजिमत किया करता है, अपनी 12 साला बेटी को इसने बहन और बहनवई के पास रखा था। चंद रोज कबल बेटी ने अपने वालिद को रोते हुए बताया कि फूफी के ससुर ने उसके साथ जिनसी ज्यादती की कोशिश की है जब वो हालत नींद में थी। वीडियो में अंजनिया प्रसाद ने यह भी इंकशाफ किया कि उसकी बेटी को धमकी भी दी गई। इस सिलसिले में शिकायत करने पर भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। उसे मजबूरन कुवैत से आना पड़ा और उसने 59 साला अंजनिया को आहनी सलाख से हमला करते हुए उसका कत्ल कर दिया। कत्ल के बाद वो कुवैत रवाना हो गया। ताहम अंजनिया प्रसाद ने कहा कि वो अपनी बेटी पर हुए जुल्म को बर्दाश्त नहीं कर पाया था और इसने ये इंतहाई इक़दाम किया और वो जल्द खुद को पुलिस के हवाले कर देगा। रंगारेड्डी जिले शादनगर बाईपास रोड पर कानगी स्कूल के बच्चों को ले जा रहा ऑटो सड़क से फिसलकर बरखी खंभों से टकरा गया। बताया जाता है कि हादसे में बच्चे मामूली तौर पर जख्मी हुए हैं। हादसे की इत्तला मिलते ही सरपरस्त भी मुकाम वाक़या पहुंच गए। स्कूली बच्चों को रोते हुए दिखा गया। बाज़ बच्चों के मामूली जख्मी होने की इत्तला मिली है। रेन बाजार पुलिस को माता की खिड़की के इलाके में नाले के पास एक शख्स की लाश दस्तयाब हुई। मुकामी अफराद ने लाश देखकर उसकी रेन बाजार पुलिस को इत्तला दी। पुलिस मुकामे वाक़या पहुंचकर जायजा लिया और एक केस दर्ज करके लाश को उस्मानिया हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस इस मामले में मसरूफ़ तहकीक़ात है। एसओटी राजेंद्र नगर के टप्पा चबूतरा के एक मकान पर छापा मारकर करीब 16 कुंटल पीडीएस चावल जब्त किया। तफसीलात के मुताबिक एसओटी ने एक मुसद्दिक़ा इत्तला पर कार्रवाई करके मस्जिद के करीब हबीब नामी शख्स के मकान पर छापा मारा, जहां से उसने राशन कार्ड्स पर जो चावल फरोख्त किया जाता है इसे जब्त कर लिया। एसओटी ने एक केस दर्ज करके हबीब को गिरफ्तार कर लिया, जबकि जब्तशुदा चावल को महकमे सिविल सप्लाईज के हवाले कर दिया गया है। और नाज़रीन, आखिर में डालते हैं सुर्खियों पर एक और नजर। अगर आप कारोबार करना चाहते हैं तो क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स से राब्ता करें।
क्यूमैक्स दे रहा है रेडी बैंकेट हॉल 3 फ्लोर्स पर मुश्तमिल 5th, 6th, 7th फ्लोर पर 6,000 का 18,000 स्क्वायर फीट का रेडीमेड बैंकेट हॉल। आज ही रजिस्ट्री कराएं और आज से ही फंक्शंस की बुकिंग करें, वो भी बेहतरीन प्राइम लोकेशन टोली चौकी पर। मंगनी, शादी, वलीमा, बर्थडे पार्टीज, एनिवर्सरी जैसी दीगर तकरीबात के लिए फुल्ली एयर कंडीशन क्यूमैक्स कोहिनूर बैंकेट हॉल टोली चौकी हैदराबाद। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, डॉलर हिल्स, अलकापुर रोड, मूसा एनक्लेव, एसए कॉलोनी, टोली चौकी, MSN डायमंड हिल्स कॉलोनी, टोली चौकी, एजल रेजिडेंसी, एसए कॉलोनी, टोली चौकी, सरीन हाइट्स, गोल्डन सैंड कॉलोनी, टोली चौकी, दारुल अमान, हैप्पी होम्स कॉलोनी, अलकापुर, दारुल खैर, सूर्यनगर कॉलोनी, टोली चौकी, डिलाइट सूट बिसाइड सना एनक्लेव, टोली चौकी, अकबर एनक्लेव, गोल्डन सैंड कॉलोनी, टोली चौकी। अनकॉम्प्रोमाइज्ड क्वालिटी कंस्ट्रक्शंस, ऑन टाइम डिलीवरी हमारी पहचान है। 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने के आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। आपका ख्वाब अब है हकीकत। अजीज वन माविन, आपका नया घर, आपका नया मुस्तकबिल। 3 BHK के लग्जरियस रेजिडेंशियल फ्लैट्स विद सजेस्टेड इंटीरियर, वो भी प्राइम लोकेशन मल्लेपल्ली पर। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, शॉपिंग मॉल्स के करीब ये घर बना है खास आपके लिए। आला मियार की सहूलतें, फुल्ली सिक्योर गेटेड कम्युनिटी जहां जिम से लेकर मदरसा और नमाज के लिए मखसूस जगह। घर पर होने वाली तकरीबात के लिए स्पेशल बैंकेट हॉल, 4 लिफ्टों की सहूलत, 24/7 सिक्योरिटी, स्पेशियस कार पार्किंग और 24/7 पावर बैकअप की भी सहूलत। 40% डाउन पेमेंट, रिमेनिंग 18 मंथ्स इजी इंस्टॉलमेंट। अजीज माविन वन, जहां ख्वाबों की ताबीर होती है। ऑफिस एड्रेस अजीज कंस्ट्रक्शन बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, टोली चौकी, हैदराबाद। इस महंगाई के दौर में सोना खरीदना हुआ आसान। जौहरी गोल्ड डायमंड्स एंड प्लैटिनम टोली चौकी लाया है गोल्ड बचत स्कीम। शादी ब्याह और दीगर तकरीबात के लिए अब सोना खरीदें 11 महीने की आसान अक़सात पर और 12वें महीने में अपना सोना घर ले जाएं एवरेज गोल्ड रेट पर, बिना कोई एक्स्ट्रा चार्ज और 0% इंटरेस्ट के साथ। 916 हॉलमार्क की ज्वेलरी, नो वेस्टेज, नो मेकिंग चार्जेस के साथ। अब होगी बचत पैसों की और घर आएगा सोना, वो भी आसान अक़सात पर। आपका भरोसा, हमारी पहचान। जौहरी, क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू। गोल्ड डायमंड्स एंड प्लैटिनम, टोली चौकी, हैदराबाद। तालीमी साल का आगाज अगस्त के वस्त से किया जाए। लू लगने और आलूदगी से होने वाली अमवात को आफात समावी के ज़मरे में शामिल किया जाए। तेलंगाना के फंड्स जारी करने बैरिस्टर ओवैसी का मुतालबा। लागचरला के किसान को बेड़ियां डालकर हॉस्पिटल ले जाए जाने का वजीर आला ने लिया नोट। तहकीकात और रिपोर्ट देने की हिदायत। तेलंगाना की हुकूमत बेरहम है, इंसानी हुकूक की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। किसान को बेड़ियां पहनाए जाने पर KTR का रद्दे अमल। सरकारी दवाखानों में फायर सेफ्टी, डायग्नोस्टिक और अद्वियात का जायजा लेने के लिए 10 टास्क फोर्स टीमों की तश्कील। वजीर सेहत का जायजा इजलास। ओहदेदारों की गलतियों पर अवाम का पैसा मुआवजे पर खर्च करना दुरुस्त नहीं। गैर मजाज तामीरात की इजाज़त देने वालों के लिए मुजरिमाना मुकदमे दर्ज किए जाएं। हाई कोर्ट की सरजनिश। नारसंगी हुदूद में एक साथ 4 मकानात में सरखे की वारदात। तलाई और चांदी के जेवरात लेकर सारिक फरार। और आंध्र प्रदेश के अनामिया जिले में फिल्मी अंदाज में कत्ल। बेटी के साथ मुबैना ज्यादती पर कुवैत से आकर बाप ने किया कत्ल। सोशल मीडिया पर जारी किया वीडियो। और नाज़रीन, इसी के साथ 4TV खबरनामे का यहीं इख्तिताम होना चाहता है। मुझे मोहम्मद सामुद्दीन मतीन को पूरी टीम के साथ दें इजाजत। देखते रहें 4TV। खुदा हाफिज।